So we began doing the Chiti Dhatu, the next one. So we made Chetati. So Lagudvasya Govinda, Chetati, Chit plus Tip, Shab Krishna Dhatu ke, and Lagudvasya Govinda. So Uddhava, if it is Laghu, then it takes or it becomes Govinda. So Idvayasya A, Chetati, Chetatah, Chetanti, इत्यादि. Then Chit plus Te, Atmapad, या कृष्ण धातु के भाव कर्मण and yak because yak is kansari, so ishasya na govinda vrishnindro kansarishu, we don't do govinda then, and we get chityate. Similarly chit plus yad, this is vidhi, shab krishna dhatu ke लघु से गोविंद, and ato ya is tathayo, ato ya is tathayo sutra is applied. Ya becomes e after a rama, and when ta or tha follows, so a becomes e, and then advamitva a, so we get chetit. Same like we made it in bhu dhatu. So chetit, chetitam, you can do that. Chetayam ityadi. Then in karmani, chityeta, chityatam, same like bhuyeta, bhuyayatam. Then chit plus tup, shav krishna dhatu ke laghu dvasya govindah. So we get chetatu, chetatam, same. Then chityatam, chityatam, chityantam, achetat, achetatam. So till bhuteshwara, quite simple. Actually, we also did this, I remember. We also did Bhutesha. So in Bhutesha, Dhatu Puramat, Sir Bhuteshe, Dhatu Puramat, Sir Bhuteshe, and Etram Dhatu ke. Now after that, Lagu Devasya Govinda. So A becomes A. And then Asti Sibhyami Dip Sipo. After Dip, when Dip or Sip follows, Eat is inserted after Asadhatu or after C. So after C, we will insert Eat here by this sutra. Asti Sibhyami Dip Sipo, because Dip is following. So we have C and we have the following, so we insert eat. Then itaha silopa iti. Then we delete C if it comes after it and this eat is following. So thus we delete C and then dashavatare katmake militva trivikrama. So we get achetit. And Vishnu dasasya harigamlam virame. Achetit. Then achetishtam. Same, similar rules. Achetishtam. Just one addition is, first of all, they have applied Ishvara Harimitra here, and then they have applied Shatpurasya Varga Yuktasya. So Achetishtam. Chit plus Tam Dhatu Purvamat Sirbhuteshe Itram Dhatuki, and Ishvara Harimitra and Shatpurasya Vargasya. So we get Achetishtam. Then see Narayana Vitti Viho knows. After C, after Narayana, and after Vidhatu, An is replaced by Us. So Chit plus An, Dhatu Puramat Sirbhutesha Idram Dhatu ke. So after C, we replace An with Us. So Lagudavasya Govinda. So we get Acheti Suhu, and then Ishvara Harimitra, Acheti Shuhu. Acheti Shuhu. Then Acheti, Achetishtam, Achetishta, Achetisham, Achetishva, Achetishma. Then in Karmani, Atmapad, Dhatu Puramat Sirbhut, and in Bhuteshate, Bhava Karmano. So we apply in. Dhatu Lagudavasya Govinda. And inasto, what is it? Inasto haraha, right? Inasto haraha. We delete the after end, so we get acheti. Acheti. Then in adhokshaja, chit plus nal. Now we had that sutra. Uh,
धातुर द्विर्वचनम अधोक्षर सन्नंग्यांशु द्विर्वचन निमित्त सर्वेश्वर पर्यंतस्य नो नो व्हाट वाज दैट सूत्र धातुर द्विर्वचनम अधोक्षर सन्नंग्यांशु सर्वेश्वर and के what was प्रत्यय आदि सर्वेश्वर भागस्य पर्यंत या सर्वेश्वर पर्यंत अधिभागस्य अनरस्य द्विर्वचनम. अनन्तरस्य द्विर्वचनम्. Yeah, so those two sutras are applied and we reduplicate chi till the first sarveshwara and then lagudvasya govinda, so we get chicheta. We get chicheta. We reduplicate, right? We reduplicate till the first sarveshwara. Then now this next sutra is asanyoga dalidhadokshaja kapilha. Adhokshaja pratyas which do not have the indicatory letter la are kapila if they are applied after a dhatu which does not end in satsanga. So for example, we are doing chit dhatu. Now chit doesn't end with the satsanga, right? There is no satsanga at the end of chit. And the next pratyaya is atus 1.2. Atus does not have la as indicatory letter. So thus atus is considered kapila. Swanjerva and swan after swanja dhatu, such pratyas are optionally considered kapila. So now implementation is chit plus atus, reduplication is done, chi. Now atus is considered kapila by this previous rule. And now because it is considered kapila, so ishasya na govinda vishnidra kansarishu, kapila kansari same. So we will not apply lagudavasya govinda here. Thus it will remain same and it will be chichitatuhu. Chichitatuhu. Similarly, chichituhu is also same. In thal, reduplication, then we also insert it by itram dhatu ke. Why don't we insert it here in atus and us? Why don't we insert it in atus and us? They are also ram dhatu ka. What is stopping it from being applied here in atus, us? It ram dhatu ke, right? When ram dhatu ka follows, we insert it. So atus, us, they are also ram dhatu ka. So why we are not inserting it there? Why in thal we insert it and why not in atus and us? Netya sarveshwarayo. Netya sarveshwarayo. We don't insert it when we have a pratyay following beginning with sarveshwara or ya rama. That's why in atus us we don't insert. In thal we insert because thal doesn't begin with ya or sarveshwara. So reduplication is done and then we apply lagudvasya govinda and we get chichetitha. Similarly, you can do the whole thing. And same for Atmapada. Chityat Kamapala Parapadam Kapila. Kampala Parapada Pratyasar Kapila. So Ishasya na Govinda Prashnidra Kansarishu. There will be no Govinda. Plus we will not insert it because Yat begins with Ya. Netya Sarveshwarayo. So Chitya, Chityastam, Chityasu. Then Chit plus Sishta. Here we will insert it and we will do Lagudvasya Govinda. So Cheti Shishta, Cheti Shyastam, ityadi. Then Balkalki, same Chetita, Chetitaru, you can do Atmapada same. Kalki, same, we insert it, we apply Lagudvasya Govinda, and because we have Sa, so we also apply Ishvara Harimitra. Chetishyati, Chetishyate, Achetishyat, and Achetishyata. That's all. Done. Nothing much in this Chiti Dhatu.
Okay. Anything? Any question? True, like we had in Nama. So ending was the thing which was taking the sequence, like Sarveshwara, then uh, Vishnuna. So here, what is the sequence? Is it the indicator letters? Like No, no, no. So sequence, uh, there is no sequence as such here in Dhatu Prakranam. Yeah, it's just Jiva Goswami is presenting them. And now different ganas are also having different dhatus. So Jiva Goswami is picking just like major, like the main ones, like prototypes. Yeah, there is no such chronological or alphabetical sequence here. Okay, so because we are meeting after some time, so I won't. Ideally, this session was to be sutra recitation session, I remember. So next session, I'll listen to the sutras till 338 from from Dhaturantasa Govindaha Pratyaya from there till 338. What is that sutra number? Maybe 298 is शब कृष्ण धातु नहीं 288 is शब कृष्ण धातु के So that must be 287. No, no, Shapkrish. Okay, 280. What? 288 is शब कृष्ण धातु के Okay, so yes from 289 धातुरंत 289. मतलब 289 Okay, is so धातु रक्त गोविंद प्रत्यय okay, so from 288 till 338. when So is the next that's class? 298. 50 sutras from 288 till 338. Hmm. Okay, so Prabhuji next. like I have the questions I put in the group should we take it at the last Yes, yes, you can ask. प्रभुजी मैंने ग्रुप में तो डाले हैं हम्म, आपका क्वेश्चन क्या है? पूछिए, आप यहाँ पूछ लीजिए. यस प्रभुजी प्रभुजी in the sutra number 312 हम्म. there is the sutra is at pratishedo masmaga yoge हम्म. so in that हम पृच्छितुम इच्छामि कुत्र अत 1.1 भूतेश इति प्रयुक्तम यदा वाक्यम मध्यम पुरुषे प्रवर्तते इव दृश्यते किम न 1.2 अभूः प्रयुज्येत हम्म. मध्यम पुरुष में कौन सा वाक्य है? अच्छा, यू मस्ट नॉट बी. यस प्रभुजी अच्छा अच्छा, ये इट विल बी एक्सप्लेन लेटर दैट विद दिस फॉर्म भवतु, सॉरी, भवान, भवन्तौ, भवन्तः. सो वी यूज द फर्स्ट, थर्ड पर्सन verbal forms. Although it is ओके Madhyama Purusha, but this is a special case. Like Bhavan, which means you in respect. Like हिंदी में हम बोलते हैं आप. जी प्रभुजी तो संस्कृत में एक होता है त्वम. हम्म तो त्वम में चलता है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन. हम्म पर जब हम बोलते हैं भवान या स्त्रीलिंग में बोलते हैं भवती, तो उसमें फिर चलता है प्रथम पुरुष. हालांकि वो अर्थ होता है मध्यम पुरुष का, यूज होता है प्रथम पुरुष. ये कारक भवती में होगा मतलब, हाँ, ये आगे बताया जाएगा, पर ये बहुत फेमस रूल है संस्कृत में. जैसे मतलब भगवान भगवान अगर मैं आपको जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में
क्या गाते हैं हम? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भवतु भवतु इज लाइक तो ओके। उसमें भी भगवान भवतु कि आप मेरे सामने प्रकट हो, या मेरे मेरे आंखों के सामने प्रकट हो। तो ये भगवान और भगवान के साथ फर्स्ट थर्ड एंडिंग थर्ड पर्सन ही चलता है। ओके, थर्ड पर वो पर्सन। उसका अर्थ होता है सेकंड पर्सन ही, मतलब मध्यम पुरुष ही होता है वो। हम्म। And Prabhuji, the second question is like regarding the uh, uh, Trishat, Trishat, uh, Trishat Shodasha Nambarani. नहीं नहीं, So आप ऐसे नहीं बोलेंगे। 316 को आप बोलेंगे। तो पहले इसमें 16 बोलेंगे, षोडश अधिकम त्रिशतम। Trishatam, षोडश अधिकम Shodash त्रिशतम। Adhikam, अधिकम Shodash ज्यादा हो गया ना, त्रिशतम मतलब 300 हो गए। तो षोडश Trishatam, अधिकम त्रिशतम। Shodash, Shodasham, Trishatam, Shodash षोड Adhikam, त्रिशत Adhikam, त्रिंशत त्रिंशत। Trimshat, नहीं, त्रिंग नहीं होगा, सिर्फ त्रि होगा, त्रि। वो बिंदु नहीं, अनुस्वार नहीं आएगा। त्रिशत। Trishat, Trishate, इट् रामधातुके इति सूत्रः। हम्म। मम प्रश्नः अहं पृच्छामि, कथं कथम भूतेश भूतेश राम धातु का भवति? यथा आम परिभाषायां। आमां भूतेशः राम धातु का न भवति, किंतु सी इति राम धातुकः तदर्थं इट् आगच्छति मध्ये। किन्तु अ, कुतः अ, अ, वेर को प्रभु जी क्या कहते थे? कुत्र? कुत्र? वेर। किन्तु कुत्र जीव गोस्वामिनः अ, लिखि लिख लिखसि that sir is राम धातु का। अच्युतादय पंच शिवश्च कृष्ण धातु का। यस। अच्युतादय अच्छा, बाकी 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 वो अन, अन, अन्य प्रत्यय राम धातु का। ओके। अन्य ठीक। प्रत्यय तो तन्मध्ये सी अपि अस्ति। ओके। हम्म। And Prabhuji, the third question I wanted to ask, हम्म। like एष वयं वयं भावकर्मणोः प्रत्ययानि सन्ति, we did, so ततः भूप्राप्तौ दशगणे इति धातुः। then why means किम ना प्रभु जी? why is किम only ना? तदा तर्हि 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 किम किम we don't apply the vikarna of 10th gana. तो अस्य प्रश्नस्य चर्चाम् अभवत् मम हाँ, मम शिक्षकयोः मध्ये। तर्हि मम शिक्षकः अपि सम्यक् रूपेण उत्तरं न mm, तदापि uh, दत्तवान्। दत्तवान्। he didn't give। तर्हि अहमपि अन्वेषणं कुर्वन् अस्मि इदानीमपि अस्य प्रश्नस्य उत्तरः। तो अहम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दास्यामि। will give। दास्यामि। विल गिव। चर्चामभवत् चर्चामभवत्, जी किन्तु हाँ। मम सन्तोषः न जातः। I was not satisfied with the charcha. So I'm still looking for it. चलो कोई बात नहीं प्रभु जी। आमाम।
अन्यत् किमपि प्रश्नमस्ति? प्रभु जी, प्रभु जी, मुझे तो अन्वय करने में दिक्कत हो रही थी। सो हम्म अहम श्वः फ्रॉम श्वः अहम आरंभ आरंभते संस्कृतं सम्पाकशाला in WhatsApp रूपेण. So and listening to some Sanskritam podcast so that हम्म हम शृण्वन्ति, so that I can also like try to speak. आमाम् उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, किमपि श्लोकादिकं पठामः। दशमस्कन्धस्य प्रथम अध्यायस्य प्रथमश्लोकः। श्रीराजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। तो इदानीम् अहं किं करोमि, अहं श्लोकोच्चारणोपरान्तं पदविच्छेदं कृत्वा पठामि। तर्हि अहं शब्दानां विभक्त्यादिकम् अपि वदामि। तो श्रीराजा उवाच उवाच श्रीराजा उवाच कथितः वंशविस्तारः भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परम अद्भुतम्। अन्वयः अपि करोमि इदानीं, तो सम्यक् रूपेण दृश्यतां भवता। तो श्रीराजा उवाच भवता सोमसूर्ययोः वंशविस्तारः उभयवंश्यानां राज्ञां परमाद्भुतं चरितं च कथितः। अत्र कथितः तो ही अत्र कथितः क्रियारूपेण प्रयुक्तम्। अपि च कथितः प्रथमैकवचनमेव, शब्दरूपमेव, किन्तु कृदन्त रूपतः क्रियापदरूपेण अपि प्रयुक्तम्। क्योंकि कृदंत कुछ कृदंत प्रत्यय ऐसे होते हैं, दे आर यूज्ड बोथ एज नाउन्स एंड वर्ब्स। तो कथितः नाउन है 1.1, किंतु वो एक क्रिया की तरह भी यहाँ पे कार्य कर रहा है। अच्छा। हाँ, आइडियली ये नाउन ही है 1.1, हम्म किंतु ये क्रिया की तरह भी यहाँ यूज हो रहा है। तो इसलिए भवता, तो इसको अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो भवता कथितः, ये शॉर्ट एक मेन सेंटेंस हो गया कि आपने कहा, ये आपके द्वारा कहा गया, पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस हम्म है ना। मैं, एक होता है कि आपने कहा और एक होता है आपके द्वारा कहा गया। यस, तो यहाँ वैसे। पर पैसिव वॉइस यूज हुआ है, भवता कथितः, सेड बाय यू। हम्म सो व्हाट इज सेड बाय यू? टू थिंग्स। वन इज वंश विस्तारः, हम्म डायनेस्टी के बारे में ना, यस, एंड सेकेंड थिंग इज चरितम। चरितम मीन्स चरितम एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। तो दो चीज बताइए, वंश विस्तार चरितम, एंड दैट्स व्हाई इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए च का प्रयोग हुआ है। च, ओके। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए च का प्रयोग हुआ है कि आपने हमें क्या क्या बताया, वंश विस्तार और चरितम। तो वंश विस्तार चरितम च कथितः। अब वंश विस्तार का कोई विशेषण नहीं है, वी डोंट हैव एनी एडजेक्टिव फॉर वंश विस्तार, बट वी डू हैव एडजेक्टिव फॉर चरितम। कैसा चरितम? परम परमाद्भुतम। अद्भुतम। परमाद्भुतम, तो परमाद्भुतम चरितम वंश विस्तार च।
अब किसका चरितम किसका वंश विस्तार? तो सोम सूर्ययोः वंश विस्तार। सोम और सूर्य, चंद्रवंश और सूर्यवंश, हम्म इन दोनों का वंश विस्तार आपने कहा। हम्म और उभय वंश्यानाम, अब उभय मतलब दोनों, हम्म तो उभय दोनों मतलब सोम और सूर्य, अगेन वो रिपीट हो गया इसलिए उन्होंने प्रोनाउन का यूज किया है। ये कृष्ण नाम हो गया ना, सर्व विश्व उभ उभय अन्य अन्य तरह यतर यतम ततर ततम कतर कतम एक एक तरह एकतम, है ना, वो हमारी लिस्ट थी यस कृष्ण प्रभु नाम में। तो प्रोनाउन का यूज तब होता है जब हम नाउन को रिपीट नहीं करते। हम्म तो यहाँ पे सोम सूर्य एक बार ही हो गया तो उसको दोबारा रिपीट तो नहीं करेंगे, तो इसलिए उभय उभय, यूज उभय का प्रयोग हुआ कृष्ण नाम जो है। हम्म तो उभय वंश्यानाम इति सोम सूर्य वंश्यानाम। और उस दोनों जो वंश के राज्ञाम, उनमें जो भी राज्ञा मतलब 6.3 राजन शब्द से, राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभ्याम राजभिः राज्ञ राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः राज्ञो राज्ञाम 6.3। तो उन दोनों वंश के जो राजा हैं, राजागण हैं, उन सभी का परमाद्भुतम चरितम च कथितः। हम्म तो इस तरह से अन्वय थोड़ा प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे। तो भवता कथितः, कथितः। 3.1 भवता। प्रभु जी कैन यू प्लीज एक बारी दोबारा भवता सोम सूर्ययोः वंश हाँ, तो भवता विस्तारो। भवता सोम सूर्ययोः वंश विस्तारः, लेट से कथितः, कथित दोनों हम्म दोनों बार रिपीट कर लेंगे हम। तो भवता सोम सूर्ययोः वंश विस्तारः कथितः। हम्म देन सेंटेंस टू, देन भवता उभय वंश्यानां राज्ञां परमाद्भुतं चरितं च कथितः। कथितः। ओके, टू मेक इट इजी वी यूज ट्वाइस। हाँ, मतलब इजी हो गया ना कि भवता कथित हमने दोबारा रिपीट कर लिया तो वो दो हम्म सेंटेंस बट गए। है वो एक ही क्योंकि हमने च लगाया ना। डर लगा वो यस। वो च होने से वो कर्ता एक ही चल रहा है, क्रिया एक ही चल रही है। एक ही चल रही है। अगर मान लीजिए च नहीं होता तो यहाँ पे फिर क्रिया अलग होता, कर्ता अलग होता। हम्म हर, या फिर कर्ता एक हो सकता था, क्रिया अलग हो सकती थी। जैसे अगर मैं कहूं कि राम ने आलू को खाया और पुस्तक पढ़ी, राम ने आलू खाया, ही एट पोटैटो एंड ही रेड द बुक। तो उसमें दो क्रियाएं, खाना और पढ़ना। पढ़ना। खाने का ऑब्जेक्ट है आलू और पढ़ने का ऑब्जेक्ट है बुक। बुक। तो वहां पे च का प्रयोग नहीं हुआ हम्म क्योंकि दोनों क्रियाओं का अलग अलग ऑब्जेक्ट है। किंतु हम्म अगर मैं कहूं कि राम ने आलू और केला खाया, हम्म तो यहाँ पे क्रिया एक है, ऑब्जेक्ट एक, और एक क्रिया के दो ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए वहां उनको च से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही क्रिया है कथितः, इसलिए च दिया है। प्रभु हम्म। जी आप वो संस्कृत भाषा में कह रहे थे तो समझ लग रहा था। अगर इफ इट्स कंटिन्यू विद प्रभु जी आल्सो देन मे बी अच्छा। इट कुड बी गुड। मम कापि समस्या नास्ति। अस्तु अस्तु। द्वितीयश्लोकः, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंस नः। यदोः च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि शंस नः। अन्वयः, हे मुनि सत्तम, हे मुनि सत्तम। ये मुनि सत्तम 8.1 संबोधन। आम आम। अस्तु। हम्म, ये मुनि सत्तम
धर्मशीलस्य यदोः च नि- धर्मशीलस्य यदोः च नितराम् नितरां कथितः कथितः इति पूर्वश्लोकात् अनुवृत्तिः कर्तव्यं कर्तव्या अत्र च इति अव्ययशब्दस्य प्रयोगमस्ति कारणं कथितः अनुवृत्ति कार्या अस्माभिः पूर्वश्लोकेन और अतः पूर्वश्लोकतः। तो हे मुनिसत्तम धर्मशीलस्य भवता हे मुनिसत्तम भवता धर्मशीलस्य यदोः नितराम् कथिता कथितः कि आपने धर्मशीलस्य भवता धर्मशीलस्य यदोः नितराम् कथितः नितरां कथितः। कथितः किं कथितः धर्मशीलस्य यदोः वंशविस्तारः कथितः उभय वंश राज्ञां कथितः that you have described about the dynasty and you have described about the kings of Yadu dynasty also। तो पिछले श्लोक से हमें भवता वो सब कंटिन्यू करना है यहाँ ओके कि आपने सोमवंश और सूर्यवंश का तो कहा, आपने यदुवंश का भी सब बताया हमें। अपि किम किम यदोः विष्णुभक्तिः अत्र यदोः षष्ठ विष्णुभक्ति एकवचनम द्विवचनम एकवचनम यदोः विष्णोः यदु ओके यदोः यस यदोः तर्हि तत्र तत्र अतः अर्थात यदुवंशे तत्र इति यदुवंशे अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि नः नः इति अस्मान् द्वितीय बहुवचनम् नः शंस वदतु तत्र यदुवंशे अंशेन अवतीर्णस्य तत्र यदुवंशे अंशेन सह अवतीर्णस्य तादृश विष्णोः वीर्याणि इति कर्माणि चरित्रं लीलादिकं सर्वमेव नः इति अस्मान् शंस वद। शंस इति विधात्री परपद मध्यम पुरुष एकवचनमेव शंस। शंस इज मतलब विधात्री परपद मध्यम पुरुष एकवचनम। ओके इट्स अ वर्ब। आम वर्ब शम्स शम प्रभुजी विच धातु शम शंस शंस इति धातु अस्ति शंस शंस इति धातु अस्ति शंसति शंसति means completely creates शंस इति वदनार्थम बोलने के अर्थ में टू रिसाइट बोलने के अर्थ में टू रिसाइट टू रिपीट टू से टू टेल बोलने के अर्थ में जैसे वध होता है ना वध होता है वच होता है वैसे we say bro like shamno mitra sham varuna that one ना शमनो दैट शम इज वो शम होता है मंगल वाला। जैसे आप जो शम बोल रहे हैं ये शम वो होता है जहां तक मुझे वो देखना पड़ेगा। शम शम वैदिक संस्कृतम ऑस्पिशियस फॉर्चुनेट। एक शम होता है शांति वाला शम शम नो मित्र वो देखना पड़ेगा। पर जहां तक मेरी समझ है फॉर दैट शम इज फॉर ऑस्पिशियसनेस फॉर मांगल्य। अस्तु अद्य
इतना ही काफी है। अलम अलम इति। यस प्रभु। प्रभु जी, किमर्थम अ, किमर्थम अस्तु शब्द इति? अस्तु इज संभाषणमध्ये अस्तु इति ओके यस ओके यस Okay. And इति Prabhu ji, अर्थः। खलु is also very used in संभाषण. खलु कतिपय जनाः प्रश्नवाचकचिह्ने रूपेण प्रयोगं कुर्वन्ति खलु। कतिपय, भवान् how many? कतिपय जनाः कुछ जना, लोग हाँ, okay. कुछ लोग. हाँ कतिपय जनाः खलु इति शब्दस्य प्रयोगः प्रश्नरूपेण प्रश्नवाचकरूपेण करिष्यति कुर्वन्ति खलु। भवान् वृन्दावनं गच्छति खलु प्रश्नचिह्न। आप, पर ये सिंगुलर को हम पूछ रहे हैं, पर हम एज अ काफी ये यूज होता है. हाँ तो Says भवान् it तो वृन्दावनं काफी गच्छति खलु और भवान् वृन्दावनं गच्छति किम। आप किम, खलु वृंदावन भी आ जा सकता, रहे हो। खलु भी आ सकता, किम भी आ सकता. हाँ मतलब वो चलती भाषा में खलु। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल फ्यू डेज अगो। दे वर सेइंग कि वी शुड नॉट यूज खलु फॉर इंटेरोगेटिव पर्पस। Why? वो कहते हैं कि हमें किम यूज करना चाहिए, खलु यूज नहीं करना चाहिए। पर अभी स्पोकन संस्कृत में खलु काफी अंदर तक आ चुका है। खलु खलु खलु। खलु. तो ठीक है। ओके ठीक है। अभी एक दूसरी क्लास है तो फिर आप करिए सूत्र वगैरह। अग्रिम कक्षायाम अग्रेसरामः वयम आगे बढ़ेंगे। अस्तु प्रभु जी, अस्तु. सत्यमेव जयते। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे प्रणाम. कृष्ण। नमो धन्यवाद प्रभु नमः। जी. नमो ये नमः। प्रभु जी, एषः खतरनाक अस्ति वा? अस्तु। अग्रे एतत् खतरनाकतमः भविष्यति। मोर खतरनाक. अस्तु अस्तु। नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे Hare कृष्ण. Krishna. नमो नमः. हरे